المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. علوم القرآن کے گزشتہ دروس میں ہم نے نظم کی تیسری فصل جو کہ احکام تجوید سے متعلق مسائل کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اور ہم نے ابھی تک اس فصل میں جن مختلف مباحث کا تذکرہ کیا اس میں ہم نے الوقف والابتداء کی بحث کو دیکھا، اس کے بعد وقف کی اقسام کو اور کیفیت الوقف کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا. اسی طرح ہم نے اس باب میں مد کے حوالے سے بھی بلکہ ہم اس سے پہلے امالہ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو آئی، اور گزشتہ 3 دروس میں ہم مد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، المد والقصر، یعنی قرآن مقدس میں مد اور قصر کے احکامات. تو ابھی تک ہم نے اس باب میں المد والقصر کی تعریف کو دیکھا اور مد کے اقسام کو ہم نے بیان کیا، اور اس میں سے بعض اقسام کا ہم نے تفصیلی تذکرہ آپ کے سامنے بیان کیا. تو یاد دہانی کے طور پر میں ایک اور بار یہ بیان کرتا چلوں کہ ہم نے یہ بات ابھی تک دیکھی کہ جنرلی یعنی براڈ کلاسیفیکیشن کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ مد 2 قسموں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک جسے ہم کہتے ہیں المد الاصلی اور دوسرا المد الفرعی. تو مد اصلی کے حوالے سے ہم نے بات بیان کی کہ مد اصلی یعنی وہ مد ہے جو اپنی بناوٹ کے اعتبار سے ایسے ہی ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی خارجی وجہ، کوئی خارجی یعنی عامل داخل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو دوسری صورت میں ہم نے بیان کیا کہ المد الفرعی یہ وہ مد ہے جس کی کچھ خارجی وجوہات ہوتی ہیں، اور ان خارجی وجوہات کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کہ جب کہ حمزہ وجہ بنے اور دوسرا جب کہ سکون وجہ بنے. تو ان سبھی یعنی بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے المد کی 9 صورتوں کو بیان کیا. ایک المد الاصلی کی 3 صورتیں جس میں ہم نے المد البدل، المد العوض اور الصلۃ الصغریٰ کو دیکھا، اور دوسرا مد فرعی کی وہ صورتیں جس کی وجہ حمزہ بنتی ہے، اس کی 3 صورتیں مد متصل، مد منفصل اور صلۃ الکبریٰ. تو یہ 6 صورتیں ہم نے گزشتہ دروس میں مکمل کی تھی. تو آج کے درس میں ہم مد فرعی کی ان صورتوں کو دیکھیں گے جن کی وجہ سکون ہوتی ہے. جن کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سکون. تو اس میں ہمارے پاس 3 صورتیں بنتی ہیں، ایک المد اللازم، دوسرا المد العارض للسکون اور تیسرا المد اللین. تو آج کے درس میں ہمارا انشاءاللہ انہی 3 مد کی ان 3 اقساموں کو سمجھنے پر ہماری توجہ ہوگی، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے المد اللازم کہ مد لازم کسے کہا جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ ان سبھی دروس میں ہم نے جس کتاب سے استفادہ کیا ہے وہ ڈاکٹر ایمن سوید کی کتاب التجوید المصور ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری سلائیڈز وہاں سے ماخوذ ہے، آپ تفصیلات کے لیے اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں تعریف کے اعتبار سے کہ مد لازم کسے کہا جاتا ہے کہ ہوا ان یاتی حرف المد وبعدہ حرف ساکن سکون اصلی. یہ مد کی وہ صورت ہے جہاں پر یعنی حرف مد کے بعد
जहां पर हर्फ मद्दा आए, हर्फ मद्दा के हवाले से हमने बयान किया क्या क्या सूरतें बनती हैं। अलिफ माकबल कसरा, वाव माकबल जम्मा और या माकबल अलिफ माकबल फतहा, वाव माकबल जम्मा और या माकबल कसरा, ये हुरूफ मद्दा है। तो मद्द लाजिम वो सूरत है जहां पर हुरूफ मद के बाद हर्फ साकिन आए, ठीक है, यानी लेकिन वो सुकून असली हो, ठीक है। हमने अलवक्फ़ वल इब्तिदा की का तज़किरा करते हुए बयान किया था कि बाज़ सूरतें ऐसी होती हैं जहां पर हर्फ हकीकत में मुतहर्रिक होता है, लेकिन वक्फ की सूरत में हम उस मुतहर्रिक हर्फ को साकिन बना देते हैं। तो वहां पर हम कहेंगे कि ये असली सुकून या असुकूनुल असली नहीं है। लेकिन इसके बरक्स बाज़ जगह है वो जहां पर सुकून हर्फ में क्या हो, असली, ठीक है। तो हम कहेंगे असुकूनुल असली से पहले जब हर्फ मद्दा होगा तो ऐसी सूरत में वस्ल और वक्फ, चाहे आप जोड़कर पढ़े या वक्फ करें, दोनों सूरतों में आपको मद अदा करनी पड़ेगी। और इस मद को हम क्या कहते हैं, ये मद्दे लाजिम है, ये मद्दे लाजिम है। बाज़ लोग इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए ऐसे भी बयान करते हैं कि ये वो सूरत है जहां पर हर्फ मद्दा के बाद मुशद्दद हर्फ आए, ठीक है, हर्फ मद्दा के बाद क्या आए, मुशद्दद। ये बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं, मतलब एक ही है। मिसाल के तौर पर अगर आप यहां पर देखेंगे, मिसाल में जो दिया है हमने अस्साख्खा, ठीक है, यहां पर हर्फ मद्दा क्या है, अलिफ माकबल फतहा है ना, स्वाद और अलिफ मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास हर्फ मद्दा है। इसके बाद अगर आप खा देखेंगे ना, खा, ये खा मुशद्दद है, ठीक है, लेकिन अगर आप मुशद्दद की अदायगी को देखेंगे, पहली खा पर क्या है, पहली खा पर सुकून है, अस्साख्खा। बात समझ आ रही है। आप अब ऐसे बयान करें कि हर्फ मद्दा के बाद सुकून असली हो, या आप ये बात बयान करें कि हर्फ मद्दा के बाद मुशद्दद हर्फ हो, तो दोनों एक सी बात है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहां पर, चूंकि यहां पर हर्फ मद्दा के बाद आने वाले हर्फ पर सुकून है और वो सुकून सुकूनुल असली है, इसलिए यहां पर जो मद अदा होगी वो मद्दे लाजिम होगी। बात समझ आ रही है। इसी तरह यहां पर जो हम कुरान मुकद्दस में अमूमी तौर पर हम सब पढ़ते हैं, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन, तो यहां पर क्या है, पहले हर्फ मद्दा है और उसके बाद लाम क्या है, लाम मुशद्दद है। तो अगर हम खोल के इसको देखें तो पहली लाम क्या है, पहली लाम साकिन है और सुकूनुल असली है इस पर। तो जब हमारे पास हर्फ मद्दा के बाद सुकूनुल असली आएगा तो ऐसी सूरत में जो मद अदा होगी वो मद्दे लाजिम है। और यही और भी मिसालें हैं। अब इस मद्दे लाजिम की हमारे पास दो सूरतें बनती हैं, एक जिसे कहा जाता है लाजिम कलिमी और दूसरा है लाजिम हरफी। लाजिम कलिमी और लाजिम हरफी, इसका क्या मतलब है, जैसे हमने अभी देखा कि इधर पूरे कलिमे में ये मामला आ गया, तो ऐसी सूरत में हम इसे लाजिम कलमी कहेंगे। बात समझ आ रही है। इसके बरक्स लाजिम हरफी, मिसाल की इसकी मिसाल हमारे पास जो है हुरूफ मुक़त्तात, हुरूफ मुक़त्तात को जब हम अदा करते हैं उसमें जो मद्दा होती है, ठीक है, हालांकि वहां पर ऐसी वजह सामने नहीं होती। बात समझ आ रही है। अगर आप हा मीम को अदा करें, अलिफ लाम मीम को अदा करें, जो लाम वाली मद्दा है वो क्या है, वो मद्दे लाजिम ही होती है, ठीक है, वो मद्दे लाजिम होती है। अब इसको क्यों इसमें शामिल किया जाता है तो वो एक अब तफसीली बहस है, अभी हम वहां नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर लाजिम हरफी में आप यानी उन अल्फाज को शामिल कर लें जो कौन है, हुरूफ को शामिल कर लें जो कहां पर आते हैं, हुरूफ मुक़त्तात की सूरत में, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा मसला है मिक़दारुल मद्दिल लाजिम, कि मद्दे लाजिम की मिक़दार कितनी होती है। युमद्दुल लाजिम बिकुल्ल अक़सामिही बिमिक़दारि सित्तति हरकात, यानी मद्दे लाजिम अपनी तमाम सूरतों में 6 हरकात के बराबर अदा होगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये मद की सूरतों में सबसे तवील किस्म की मद है। जैसे हमने बयान किया था मद की लंबाई के एतबार से मुख्तलिफ अक़साम, तो ये क्या है, मद्दे तूल है, यानी इसमें क्या है, मद्दे लाजिम में तूल है 6 हरकतों के बराबर, ठीक है। और नकूलु बिमिक़दारि
सलासत अज़ाफ़ मद तबी, या हम ये कह सकते हैं कि मद तबी का 3 गुना। मद तबी का खिंचाव कितना है? 2 हरकतों के बराबर। उसका 3 गुना कितना आएगा हमारे पास? 6 हरकत। तो हम कहेंगे, ये कहने की मुख्तलिफ सूरतें हैं। बाज़ लोग वैसे कहते हैं, बाज़ लोग इस तरीके पर कहते हैं कि मद लाजिम की अदा यानी मिकदार 6 हरकत के बराबर है, या मद तबी का 3 गुना है। ठीक है, तो इसकी मिसालें हमने आपके सामने बयान की। इसके बाद दूसरी सूरत जो बनती है वो है अलमद्दुल आरिज़ु लिस्सुकून, मद आरिज़। आरिज़ किसे कहते हैं? यानी कोई खारजी वजह का दाखिल होना, कोई यानी इसमें कोई जो असल हालत इस कलिमे की थी उसमें कोई खारजी वजह दाखिल हो गई जिसकी वजह से मद को अदा करना पड़ रहा है। ठीक है, अब इस मद आरिज़ की तारीफ क्या है? हुआ अन यातिया हर्फुल मद्दी व बअदहु हर्फुन साकिनुन सुकूनन आरिज़न बिसबबिल वक्फ़ी। ठीक है, देखिए यहां तक तारीफ पहले जैसी है, मद लाजिम जैसी है कि हर्फ मद्दा के बाद हर्फ साकिन आए, लेकिन वो साकिन सुकून असली नहीं होता बल्कि सुकून आरिज़ किसी खारजी वजह की बुनियाद पर होता है, किसी आर्जे की वजह पर होता है। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर कोई दाखिल हो जाता है, फिर वो किसकी वजह से हो? बिसबबिल वक्फ़ी, कि जहां पर हम वक्फ कर रहे हैं। तो हमने वक्फ की हालत में आपके सामने मुख्तलिफ सूरतें बयान की थी। वक्फ या तो इख्तियारी होगा, या इज़्तिरारी होगा, या इंतज़ारी होगा, जो भी सूरतें हमने बयान की थी। मिसाल के तौर पर अदा करते करते सांस फूल गई, या हमने जो अलवक्फ की जो सूरत है इख्तियारी की, उसकी जो मुख्तलिफ हालतें बयान की थी, उनमें से कोई भी सूरत सामने आ जाए। देखिए यहाँ पर क्या है? हर्फ असल पर मुतहर्रिक है, यानी हर्फ मद्दा के बाद आने वाला हर्फ हकीकत में मुतहर्रिक है, लेकिन चूंकि आप इस हर्फ पर किसी वजह से सुकून कर रहे हैं, बात समझ आ रही है? आपकी हरकत सुकून में तब्दील हो गई, तो इसे हम कहेंगे ये क्या है? ये आरिज़ है, ये अस्सुकूनुल आरिज़, यानी ये असली सुकून नहीं है, ये बनावट वाला सुकून नहीं है, बल्कि खारजी कोई वजह दाखिल हो गई जो वक्फ थी, उसकी वजह से हमने वहां पर सुकून किया। जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर अल बयाना, ठीक है, लेकिन अगर हम रुकेंगे अल बया अल्लमाहुल बयान, या अगर आप सूरतुल फातिहा में ही देखेंगे हम क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये अगर आप देखेंगे नून पर आखिर में क्या है? असल में नून पर फतहा है, बात समझ आ रही है? लेकिन वक्फ की वजह से हमने बयान किया था पहले ही कि आप इस हरकत को किस में तब्दील कर देते हैं? सुकून में, और ये सुकून असली नहीं है बल्कि वक्फ की वजह से दाखिल होने वाला सुकून है। इसलिए तारीफ में क्या आया? हुआ अय्यातिया हर्फुल मद्दी व बअदहु हर्फुन साकिनुन सुकूनन आरिज़न बिसबबिल वक्फ़। ये मद की वो सूरत है जहां पर हर्फ मद्दा के बाद हर्फ साकिन आए, लेकिन सुकून सुकून आरिज़ हो, सुकून असली नहीं, और उसकी वजह क्या हो? साकिन करने की वक्फ हो। बात समझ आई? तो अगर हम देखें मिलाकर पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, फिर नून पर वापस हम फतह लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर इस मद्दे आरिज़ की मिकदार में 2, 4 और 6 मुख्तलिफ अक़वाल है। ठीक है, वल औला लिल क़ारी अन यक़सिर अल आरिज़ फिल हद्री व युवस्सितहु फित तदवीरी व यतूलहु फित तहक़ीक़ लि ततनासबल क़िराअह। और इल्म तजवीद के जो उलमा है वो कहते हैं कि कारी को तिलावत जिस सूरत में वो कर रहा है उसी एतबार से इस मद्दे आरिज़ को अदा करना चाहिए। अगर वो हद्र की सूरत में पढ़ रहा है तो फिर वो कसर के साथ अदा करे। कसर हमने क्या कहा था? 2 हरकतों के बराबर। अगर वो हद्र की सूरत में पढ़ रहा है तो, अगर तदवीर में पढ़ रहा है तो तवस्सुत यानी 4। ठीक है, और अगर वो किस में पढ़ रहा है? तहकीक, या जिसे हम क्या कहते हैं? तरतील। अगर उस सूरत में पढ़ रहा है तो फिर तूल यानी 6, 2, 4 या 6। और जिस सूरत में तिलावत का आगाज किया है उसी सूरत में इख्तिताम भी करे। ये नहीं कभी हद्र पढ़ेगा, कभी तदवीर पढ़ेगा, कभी तरतील पढ़ेगा। जिस सूरत में अदा कर रहा है उसी सूरत में अदा आगे मुकम्मल करना है। बात समझ आई? अब क्या फ़र्क थी मद्दे लाजिम और मद्दे आरिज़ में?
देखिए दोनों सूरतों में वजह क्या बनी, सुकून, ठीक है, इसीलिए दोनों मद्दे फरई हैं, मद्दे असली दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। अब फर्क इतना है कि इसमें मद्दे लाजिम में सुकून असली था और मद्दे आरिज में सुकून क्या था, आरिज था, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये फर्क है। इसके बाद जो आखिरी सूरत बनती है वो क्या है, वो है मद्दुल लीन। मद्दुल लीन, इसकी तारीफ क्या है, हुवा अन यातिया हर्फुल लीनी व बअदहु हर्फुन साकिनुन सुकूनन आरिजन बिसबबिल वक्फ। इसमें और उसमें खाली एक चीज का फर्क है, वहां पे हर्फ मद्दा आया था, यहां पर हर्फ लीन आता है। हर्फ लीन क्या क्या है जी, वाव माकबल फथा और या माकबल फथा, बात समझ आ रही। वो अगर कसरा लेंगे तो फिर हर्फ मद्दा है, समझ आई बात। तो यहां पर वाव माकबल फथा है, देखिए यहां पर वाव माकबल, तो हर्फ लीन बन गया, बात समझ आ रही है। अब इसके बाद क्या अगर आया, अगर सुकून आरिज आ गया, सुकून आरिज वक्फ की सूरत में, हर्फ लीन के बाद सुकून आरिज आ जाए वक्फ की सूरत में, तो ऐसी सूरत में भी हम क्या करेंगे, मद करेंगे, और इसकी मिकदार भी 2, 4 या 6 हरकत के बराबर होगी। तो इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, ये मद्दे लीन है, मद्दे लीन। फर्क क्या थी वहां पर, गुज़श्ता स्लाइड में यहां मद्दे आरिज में हर्फ मद के बाद हर्फ साकिन आया था, यानी ठीक है, यहां पर हर्फ लीन के बाद आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम ऐसे हुरूफ पर रुकें, ठीक है, असली में क्या है, नाउमुन, ठीक है, अगर हम रुक जाएं, सुकून करें, नाउम, समझ आ रही है। इसमें खाली एक एक्सेप्शन बनती है, वो है तनवीन, कौन सी वाली, 2 ज़बर वाली, ठीक है, जिसमें हमने बयान किया था कि वहां पर हम वक्फ की सूरत में क्या करते हैं, एक हरकत और अलिफ को जोड़ते हैं, वहां पे मद्दा उस सूरत में अदा होगी। अलीमा अलीमा कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का, ठीक है, दक्कन दक्कन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। वहां जब हम रुकते हैं, वक्फ करते हैं, अगर तनवीन 2 ज़बर वाली होगी तो एक हरकत और अलिफ की अदायगी के साथ हम वक्फ करते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर 2 ज़बर, 2 पेश, 2 ज़ेर होगी तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम सुकून में तब्दील कर देते हैं। अगर अब ये हो कि हर्फ लीन के बाद हर्फ साकिन आए और वो साकिन क्या हो, सुकूनन आरिजन, तो वहां पर हम मद करेंगे, तो उस मद की मिकदार भी 2, 4 या 6 हरकत के बराबर होगी। और गुज़श्ता यानी स्लाइड की तरह कि कारी के लिए लाजिम है कि अगर वो हर्फुल लीन को हदर की सूरत में अदा कर रहा है, यानी मद्दे लीन को हदर की सूरत में अदा कर रहा है तो वहां पर कसर करेगा, अगर तदबीर की सूरत में अदा कर रहा है तो तवस्सुत होगा, और अगर तरतील की सूरत में अदा कर रहा है तो तूल होगा, ठीक है। वो क्या मतलब हुआ, 2 हरकत कसर, 4 हरकत तवस्सुत, 6 हरकत तूल, बात समझ आई। और जैसे तिलावत का आगाज किया उसी तरह तिलावत को मुकम्मल भी करेगा। अब देखिए कुछ कंपैरिजन उलमा करते हैं इन अक़सामुल मुदूद के दरमियान। जैसे मद्दे लाजिम जो है उसके बारे में कहा गया, हुवल मद्दुल्लज़ी अजमअल कुर्राउ अला मद्दिही, जो मद्दे लाजिम है इस पर कुर्रा का इत्तेफाक है कि इस पर मद करना ही करना है, बात समझ आई। वह अजमअ अला मिक़दारिही, और इस पर इसकी मिक़दार पर भी वो सब मुत्तफ़िक हैं कि मद्दे लाजिम की मिक़दार कितनी होगी, 6 हरकत के बराबर। वह हुवल मद्दुल लाजिमुल इस्तिलाही, और ये इस्तिलाही तौर पर मद्दे लाजिम इसे ही हम कहते हैं। दूसरा अल मद्दुल वाजिब हुवल मद्दुल्लज़ी अजमअल कुर्राउ अला मद्दिही, मद्दे वाजिब की सूरत हमने गुज़श्ता दर्स में बयान की थी। मद्दे वाजिब के बारे में यह है कि ये वो मद है जिसके मद पर कुर्रा का इत्तिफाक है कि यहां पर मद करना है, सूरत पर इत्तिफाक है, लेकिन वख्तलफ़ू फ़ी मिक़दारिही, और इसकी मिक़दार पर इख्तलाफ है। जिसकी एक मिसाल हमने क्या बयान की थी, हुआ मद्दुल मुत्तसिल, मद्दे मुत्तसिल, यहां पर मद करना है लेकिन कितना करना है, मिकदार कितनी होगी उस पर इख्तलाफ है। करने पर इत्तिफाक है, मिकदार पर इख्तलाफ है। इसीलिए हमने कहा था कि इसको कहते ही हम अल मद्दुल वाजिबुल मुत्तसिल, बात समझ आई। वाजिब क्यों कहते हैं, करना है,
کرنے के बारे में इत्तिफाक है। अब कितना मद करना है उसमें कुर्रा का इख्तिलाफ है। और तीसरा है अल मद्दुल जाइज़ हुवा अल मद्दुल लज़ी इख्तलफ़ अल कुर्रा बैन मद्दिही व क़स्रिही, कि ये वो सूरतें हैं जहाँ पर कुर्रा के दरमियान इख्तिलाफ है कि ऐसी सूरत में मद करना है या कसर करना है। वख्तलफ़ू फ़ी मिक़दारिही, और मिक़दार में भी इख्तिलाफ है। वो हुवा अल मद्दुल मुनफ़सिल, और इसमें कौन कौन आता है? मद्दे मुनफ़सिल, सिलतुल कुबरा, मद्दुल आरिज़ु लिस्सुकून और मद्दे लीन। बात समझ आई? पहली सूरत में दोनों सूरतों में इत्तिफाक, यानी करने पर भी इत्तिफाक और मिक़दार पर भी इत्तिफाक। दूसरी सूरत में मद की अदायगी पर इत्तिफाक लेकिन मिक़दार पर इख्तिलाफ। तीसरी सूरत में करने पर मद और कसर दोनों में इख्तिलाफ और मिक़दार पर भी इख्तिलाफ। इसमें मद लाजिम है, इसकी किस मिसाल क्या है? मद मुत्तसिल। और मद जायज़ की किस्में क्या है? मद मुनफ़सिल, सिलतुल कुबरा और मद्दुल आरिज़ु लिस्सुकून और मद लीन। अब यहाँ पर एक मसला आता है जिसमें हम ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे कि अगर किसी जगह पर मद की एक से ज़ायद किस्में जमा हो जाएं, बात समझ आ रही है? किसी जगह पर मद लाजिम और मद लीन जमा हो गई, बात समझ आ रही है? तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? तो वहाँ पर एक कायदा इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं अक़वल मुदूद। ठीक है, मद जो ज़्यादा मजबूत होगी उसको बुनियाद बनाकर मद किया जाएगा, मिक़दार वही ली जाएगी। समझ आ रही बात? जैसे मिसाल के तौर पर अब इसकी हायरार्की बनती है कि पहले सबसे ज़्यादा मजबूत मद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। सबसे ज़्यादा मजबूत जो मद की सूरत है वो क्या है? मद लाजिम। क्यों? लिल इजमाई अला मद्दिही व अला मिक़दारिही, इसकी अदायगी और मिक़दार दोनों पर इत्तिफाक होने की वजह से मद की सबसे मजबूत तरीन किस्म किसको माना जाता है? मद लाजिम। दूसरा मद मुत्तसिल, लिल इजमाई अला मद्दिही ला अला मिक़दारिही, क्योंकि इसकी मद करने पर इत्तिफाक है लेकिन मिक़दार पर इत्तिफाक नहीं है, तो दूसरा नंबर मद मुत्तसिल का बनता है। तीसरा मद आरिज़ का, लिअन्नहु मुद्दा बिहमलिही अला लाजिमी कुल्लियन औ जुज़इयन। मद आरिज़ चूंकि मुल्हिक होता है हमें किसके? मद मुत्तसिल के साथ ही। बात समझ आ रहा है? इसीलिए इसके बाद मद आरिज़ को माना जाता है, उसके बाद मद मुनफ़सिल और मद बदल। अब इसमें उलमा बहुत तफसील बयान करते हैं कि अगर ये और ये मद जमा हो गई तो इस वक्त अक़वा कौन होगा, मिक़दार कितनी होगी। चूँकि वो नाज़िम रहिमहुल्लाह ने उतना तूल नहीं दिया है इस बहस को, तो हम भी वहाँ की तरफ नहीं जा रहे हैं। सिर्फ हमने कायदा ये बयान किया, मद की जो सूरत सबसे मजबूत होगी उसको बुनियाद बनाकर उस मिक़दार के साथ मद को अदा किया जाएगा। बात समझ आई? तो इन सभी बातों को सामने रखते हुए आप नज़्म की जानिब आए। सिलसिलतुल मुतून का सफ़ा नंबर 41। तो फरमाते हैं नाज़िम, वल मद्दु फ़ी नहवी सूअ औ मुत्तसिलु व नहवी मा उन्ज़िला फ़हुव मुनफ़सिलु हमज़तुन वर्शुन अतवलुल कुर्राई फ़ीहि फ़आसिबुन यलिल क़िसाई वश्शामु फ़ल-बसरी ला ख़िलाफ़ फ़ी तमकीनि ज़ित्तिसालिही लाकिन यक़िर्रु फ़ी ग़ैरिहिल बसरी मा क़ालूना वब्नु कसीरिहिम युक़स्सिरूना तख़फ़ीफ़ु हम्ज़िन लिल हिजाज़ नक़लु लिसाकिनिन क़ैल लिवर्श असलु। ठीक है, हमने खाली अभी तक इसकी 2 लाइनों को ही पढ़ा है। वो क्या है? फरमाते हैं वल मद्दु फ़ी नहवी सू, कि मद किस लफ्ज़ की सूरत में? जैसे सू अल हिसाब। तो ये मद की कौन सी किस्म है? ये मद की कौन सी किस्म बनती है? ये मद मुत्तसिल बनती है, क्योंकि इसी हर्फ में हर्फ मद्दा के बाद क्या आ रहा है? हमज़ा आ रहा है, इसी हर्फ का हिस्सा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मद मुत्तसिल है। दूसरी उन्होंने की मिसाल बयान मद मुनफ़सिल की। आगे फरमाते हैं हमज़तुन वर्शुन अतवलुल कुर्राई फ़ीहि, मद मुत्तसिल और मद मुनफ़सिल की अदायगी में जो लोग जो कुर्रा तूल के कायल हैं, जिनकी किरात में तूल पाया जाता है, वो कौन है? इमाम वर्श और इमाम हमज़ा। इमाम वर्श और इमाम हमज़ा के यहाँ मद तूल के साथ अदा होती है। फरमाते उसके बाद फ़आसिमुन यलिल क़िसाई, उसके बाद इमाम आसिम और इमाम किसाई एक जैसे मिक़दार में अदा करते हैं। तो हम कहेंगे कि मद की सूरत में
अतवलुल कुर्राई फिल मद, कि मद की अदायगी में सबसे ज़्यादा लंबाई खिंचाव पैदा करने वाले कुर्रा कौन है? इमाम हमजा और इमाम वर्श, उनके बाद इमाम आसिम और इमाम किसाई। तो इसके बाद अब हमजा के कवायद हैं, ठीक है। तो ये अब आखिर तक इस बाब के, इस फसल के आखिर तक अब हमजा के मुख्तलिफ मसाइल का तज़किरा होगा, उनका हम इंशाअल्लाह अगले दर्स में तज़किरा करेंगे। तो इख्तिताम पर एक बार इस स्लाइड को देखें जिसमें हमने मद की सूरतों को अभी तक बयान किया था। तो मद की तारीफ़ को हमने देखा, हमने मद की अक़साम को देखा। तो ब्रॉडली स्पीकिंग हमारे पास मद की दो सूरतें बनती हैं, एक मद असली और मद फ़रई। मद असली वो मद है जो अपनी बनावट के एतबार से ही ऐसा है कि उसको मद के बगैर अदा नहीं किया जा सकता, और उसी के साथ हम तीन सूरतें जोड़ते हैं। एक मद बदल, ये हमने कहा कि मद बदल किसकी एक सूरत है? ये मद तबई की ही एक सूरत है कि कुल्लु हमजिन ममदूदिन, यानी हमजा ममदूदा को हम क्या कहते हैं? हमजा ममदूदा को क्या कहते हैं? मद बदल, ठीक है। इसी तरह मद्दुल इवज़ हमने देखा कि ये तनवीन पर जब हम वक्फ, तनवीन दो ज़बर पर वक्फ करते हैं तो वहाँ पर हम अलिफ के ज़रिए से तब्दील कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह सिलतुस सुगरा को हमने देखा, ये तीन सूरतें, बल्कि हम कहेंगे कि चार मिलकर बनती हैं मद असली, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि मद फ़रई, ये वो मद की सूरत है, और इन चारों सूरतों में क्या होगा? असली की चारों सूरतों में इनकी मिकदार दो हरकतों के बराबर होगी। बात समझ आई? अब यहाँ पर मद फ़रई में हमने बयान किया कि ये वो मद की सूरत है जो किसी खारजी वजह की बुनियाद पर यहाँ पर मद किया जाता है। अब हमने वो खारजी वजह दो बयान की, या तो हमज़ा के दाखिल होने की वजह से या सुकून के दाखिल होने की वजह से। अब हमज़ा जहाँ पर वजह बनती है उसकी तीन सूरतें, मुत्तसिल, मुनफसिल, सिलतुल कुबरा। मुत्तसिल वो मद है जहाँ पर हमज़ा उसी कलमे में आए जिसमें हर्फ मद्दा मौजूद हो, उसकी मिकदार के बारे में क्या अक़वाल है वो हमने बयान किए। मद मुनफसिल वो है जहाँ पर हर्फ मद्दा एक कलमे का आखिरी हर्फ हो और उसके बाद दूसरे कलमे का आगाज़ हमज़ा की वजह से हो, तो उसे हम मद मुनफसिल कहते हैं। उसके बाद सिलतुल कुबरा की तारीफ़ को भी हमने देखा। दूसरी सूरत जहाँ पर सुकून वजह बनती है उसमें एक किस्म है मद लाजिम, ये वो सूरत है जहाँ पर हर्फ मद्दा के बाद सुकून आए और वो सुकून सुकूनुल असली हो, अस्सुकूनुल असली हो। और दूसरी सूरत हमने बयान की अल मद्दुल आरिज़ुल सुकून, ये मद की वो सूरत है जहाँ पर हर्फ मद्दा के बाद हर्फ तो साकिन आए लेकिन वो साकिन असली ना हो बल्कि वो वक्फ की वजह से वहाँ पर रुका गया हो। तो ऐसी मिकदार में हमने बयान किया 2, 4 और 6 की मिकदार में ये मद अदा होगी। और तीसरी सूरत आखिरी जो है मद लीन, जो हमने बयान किया कि मद लीन ये वो सूरत है जहाँ पर हर्फ लीन के बाद सुकूनुल आरिज़, अस्सुकूनुल आरिज़ आए। अब मद यानी हर्फ लीन के बाद वक्फ करें, और वक्फ की सूरत में जब आप रुकेंगे तो वहाँ पर आप यानी मद को अदा करेंगे, और इसकी मिकदार भी 2, 4 या 6 हरकत के बराबर होगी। और इसका दारोमदार इस पर होगा कि आप किस तरीके पर तिलावत कर रहे हैं। कसर की सूरत में 2, तदवीर की सूरत में यानी हदर की सूरत में 2, तदवीर की सूरत में 4 और तरतील की सूरत में 6 हरकत के बराबर इसकी मिकदार होगी। तो मुझे उम्मीद है कि इसके साथ ये पूरा चार्ट आपके जहन में तमाम अक़साम के साथ अच्छी तरीके से बैठ गया होगा। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु ताला आलम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल-मनार 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 अल-मनार। ए अमीने इल्म फन, ए हिकमतों के अंजुमन, तुझ पे नाज़ा है चमन, तुझ पे नाज़ा है चमन।